पहले वाले वीडियो में हमने जो एमसीक्यूज़ किए थे, आज हम करेंगे ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमें बोला है ये डिफाइन द टर्म ट्रांसवर्स वेव। तो आपके सामने ये रखा है मैंने, ट्रांसवर्स वेव आर वेव्स दैट ट्रैवल इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। बात आ गई समझ में। और दूसरा है डिफाइन द टर्म लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये भी आपके सामने ये पे पड़ा है, आप देख सकते हो। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर वेव्स दैट ट्रैवल इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। और अब आते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है, इसमें दो पार्ट हैं। पहले में कहा था ए में राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैकेनिकल वेव्स। हमने नोट लिखना है ना, किताब में तो सिर्फ उसके डिफरेंस में दिए हुए, हमने नोट लिखना है। मैकेनिकल वेव्स आर सच वेव्स दैट नीड ए मीडियम फॉर propagation. Mechanical waves produced by vibratory motion in the respiratory medium. Mechanical waves consist of transverse waves as well as longitudinal waves. Mechanical waves cannot travel through the vacuum. All mechanical waves through their medium at different speed depending upon the physical properties of the respective medium. Examples of mechanical waves are sound waves, water waves and seismic waves. ये हमने इसका 3 का ए पार्ट कर दिया। अब हम करेंगे बी। How can you say that mechanical waves are also material waves? Mechanical waves are waves which propagate through a material medium, solid, liquid or gas, of a wave medium speed which depends on the elastic and inertial properties of their medium. और हम आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 पे। Waves are the means of energy transfer without matter. Justify this statement with the help of everyday life examples. और हम आते हैं, ये आपके सामने मैंने रखा है। Waves can transfer energy over distance without moving matter. The entire distance, for example, in ocean wave can travel many kilometers without the matter itself moving many kilometers. The water moves up and down motion known as the disturbance. It is the disturbance that travel in the wave transferring energy. और पंहिंजो क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ ए वेव। पहिरियों आहे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड छा आहे? एम्पलीट्यूड इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय अ पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द रेस्ट और मेन पोजिशन। ॿियो नंबर आहे पीरियड। पीरियड इज़ द टाइम टेकन फॉर एनी वन पॉइंट ऑन द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। The SI unit of the period is second. 2 नंबर मांगे चाहिए तो frequency. Frequency is the number of complete waves produced by a source per unit of time. B definition ये frequency is also defined as the reciprocal of the period. Frequency जो मना फार्मूला है physical to 1/t 1/time। ठीक। 5 चौथो नंबर आहे वेव लेंथ। वेव लेंथ ते पाण लिखंदा आहियूं निशानी में लेमडा। वेव लेंथ इज़ द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ्स इन अ ट्रांसवर्स वेव एंड टू सक्सेसिव कंप्रेशंस एंड रेयरफिकेशंस इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इट्स SI यूनिट इज़ मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 में पाके चाहिए तो क्वेश्चन 6 में 2 आहिनि। व्हाट इज़ अ रिपल टैंक एंड एक्सप्लेन्स इट्स वर्किंग। 35 नंबर 1 ॾिनो। ठीकु आहे।
A ripple tank is a shallow glass tank of water used to demonstrate the basic properties of wave. The light allows you to see the motion of ripples created on the water surface more easily. Ripples can be made by hand, but to generate regular ripples in it is better to use motor. ओके क्वेश्चन नंबर 6 जो ए थी वियो हाणे पाण क्वेश्चन 6 जो बी कंदासीं क्वेश्चन नंबर 6 जो बी आहे बाक़ी चए थो define the wave front. Wave front is an imaginary line on a wave that joins all points that are in the same phase. ओके 5 नंबर करिए जो बाकी क्वेश्चन नंबर 7 दा चुंदा reference an experiment to explain the reflection of a wave concerning the ripple tank. ओके 5 सवाल पढ़ी जो हाणे 5 जवाब कंदा some small ripple tanks fit onto the top of an overhead projector. The example is there are illuminated from below. The ripples on the water show up as shadows on the screen. Underneath the tank, all the basic properties of waves, including reflection. In the present case of a boy standing up on the swing, it rises. And बाकी करना है क्वेश्चन नंबर 8 में चाहे तो व्हाट इज फिनोमेना ऑफ डायफ्रेक्शन. The spreading of the waves near an obstacle is called diffraction. ठीक है आप 8 क्वेश्चन करी रहियो पाण चुंदा हाणे 9 में 2 आहिनि 9 जो ए ऐं बी. व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. 9 जो है oscillatory motion under a retarding force proportional to the amount of displacement from an equilibrium position. 9 जो बी है basic conditions to execute simple harmonic motion are पेन नंबर आए there must be an elastic restoring force acting on the system. The system must have inertia. And number 3 the acceleration of the system should be directly proportional to the displacement and is always directed to mean position. And पाणियो 9 नंबर करी छॾियो 9 जो ए बी ॿई करी ॾिया बाक़ी चवंदा हाणे 10 नंबर क्वेश्चन दे 10 नंबर क्वेश्चन जो ए ऐं बी 2 पार्ट आहिनि. नंबर ए में चए थो with the help of a diagram explain simple harmonic motion in the pendulum. मूं हिते शिकल बि ठाहे छॾी आहे तव्हां ॾिसी सघो था. As we have already seen, the potential energy in a simple pendulum is stored in raising the bob up against the gravitational force. The pendulum bob is clearly oscillating as it moves back and forth, but it is exhibiting simple harmonic motion. Simple pendulum period is affected by length and gravity. Acceleration, the period is independent of mass and amplitude. For the simple pendulum executing SHM, we have the following formula for its period. And जो formula है T is equal to 2 pi under L upon G. This formula shows that the period T of a simple pendulum depends upon its length and acceleration due to gravity over that place. The period of the pendulum is independent of mass and its amplitude. Okay. इते जो किताब में पाके चाहिए what will be the effect of the period if there is an increase in its length. ठीक है. पंहिंजो 11 नंबर क्वेश्चन आहे 11 में 2 आहिनि यानी ये पाण पढ़ूं था with the help of a diagram
Explain SHM in the ball and boil system. ये आहे पंहिंजे यारहें जो इहो जवाबु मुशी कलबर डायग्राम ठाही ॾिए ॾिसो सघो था पाण. Hence there is a meter. Now if we bring the ball and ball to position A, ॾिसो तव्हां पोजिशन A ते बॉल रखियो पियो आहे and that release it, माना उनखे हुतां हलाए वञे थो या the ball will start moving towards the main position. उहो अचे पियो मेन पोजिशन माना जिते 0 ॾिनो पियो आहे ॾिसो पिया R लिखियो पियो आहे ॾिसो पिया माना ॾिसंदा हूंदा 0 due to restoring force caused by its weight. At position 0 the ball gets maximum speed and due to inertia it moves towards the extreme position B. ठीक है. जो क्वेश्चन नंबर B आए, why is the motion of a ball in the ball executing simple harmonic motion is maximum at its equilibrium position. पाई लिखी छॾियो आहे in simple harmonic motion the kinetic energy is maximum at the middle position and 0 at the extreme position while the potential energy is 0 at the middle position and maximum at the extreme position. हाणे पंहिंजो क्वेश्चन नंबर अचे 12 आख़िरी पोइ पाण कंदासूं न्यूमेरिकल. छा कंदासूं न्यूमेरिकल. क्वेश्चन नंबर 12 में पाण खे छा थो चए, क्वेश्चन नंबर 12 में टे आहिनि सुवाल. नंबर ए में चए थो व्हाट आर डम्प्ड ऑसिलेशन. A dumped oscillation means at oscillation that forces away with time. Example include swinging pendulum, a weight on a spring, and also a resistor, inductor, capacitor, RLC circuit. ऐं पंहिंजो अची वियो क्वेश्चन नंबर बी. 12 जो बी आहे हाउ डज़ डंपिंग progressively reduce the amplitude of oscillations. In damping, oscillations decrease due to the energy lost from the system in the overcoming external forces like friction of air, resistance and other resistive forces. ऐं 12 जो आख़िरी आहे सी. A boy is swinging in the swing explains why its amplitude reduces progressively with time. Sorry for that. The effective length of the swing reduces when a boy seated on a swing stands up on the swings. The time period therefore reduces as the length decreases. All the oscillation frequency is inversely proportional to the time period. In the present case of a boy standing up on the swing, it rises. हाण पाचींदा न्यूमेरिकल ते. ठीकु आहे. पहिरियों न्यूमेरिकल आहे सेक्शन सी जो व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ ए रेडियो वेव broadcasted by a radio station with a frequency of 1300 kHz. ओके. इनमें पाके लेमडा मालूम करनी है. फ्रीक्वेंसी पाके मिलेला 1300 kHz. kHz जो मन किलोहर्ट्ज़ 1300 ज़रिया 1000 बराबर 13 × 10⁵. ये जवाब अचे थो त पाके माना हिसाब करण में तकलीफ़ न थींदी छो त पाके वेलासिटी जी पाण लथो है ही फ्रीक्वेंसी लथी है 3 मिलियल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. पाके माना वेलासिटी स्पीड जो फार्मूलो अचे पियो बराबर लेमडा एफ. लेमडा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ. लेमडा उन तरफ़ खणी विया त वी होॾां वंड थी वियो. लेमडा इज इक्वल टू 3 × 10⁸ एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 × 10⁵. लेमडा इज इक्वल टू 3/10 × 10⁸ × 10⁻⁵. हेठो मथे वियो माइनस में अची वियो -5. ठीकु आहे. लेमडा इज इक्वल टू
0.23 into 10 power 3 meter, 2.3 into 10 power 2 meter. Lambda is equal to 2.3 into 10. जो जवाब आयो लैम्डा इज इक्वल टू 2.230 माना 200 मीटर पंहिंजो जवाब आयो। हिन में पाण खे न सम्झ में आयो हुजे, कुझु बि छा बि सम्झ में न आयो हुजे या कुझु बि न सम्झ में आयो हुजे त कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधाइजो, तव्हांजी महिरबानी थींदी। को ॿियो न्यूमेरिकल न सम्झ में हुजे ठीकु आहे, पाण पहिरियों न्यूमेरिकल हाणे ॿिए ॾांहुं वधंदासीं। ठीकु, नंबर ॿियो न्यूमेरिकल आहे द वेव्स मूविंग इन द पॉन्ड have a wavelength of 1.6 meter and a frequency of 0.80 hertz. Calculate the speed of these water waves. ठीक है, हाणे पाण अचूं था न्यूमेरिकल ते। इन्हनि न्यूमेरिकल मां सभिनी खां सुखे में सुखो न्यूमेरिकल इहो आहे। बाक़ी लैम्डा जी वैल्यू मिलियल आहे 1.6 मीटर, फ्रीक्वेंसी पंहिंजी आहे 0.80 हर्ट्ज़, पाण वेलोसिटी मालूम करणी आहे। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा एफ, पंहिंजे लैम्डा जी वैल्यू मिली पई आहे 1.6 इंटू 0.80। हिननि जे पाण कैलकुलेटर तो करी वठिजो, मूं करे छॾियो आहे। v इज इक्वल टू 1.28 मीटर पर सेकेंड। ये अची वियो ॿिए नंबर न्यूमेरिकल जो जवाबु। ठीकु, हाणे पाण टे ॾांहुं वधंदासीं। नंबर टियों न्यूमेरिकल आहे इफ 15 waves pass through a point in the rope in 10 seconds, what are the frequency and the period of wave if its wavelength is 8 centimeter? Calculate the wave speed। बाकी इनकी स्पीड मालूम करनी है। हाणे पाण न्यूमेरिकल न वधूं था। ये नंबर टियों न्यूमेरिकल। नंबर टे जी डेटा है नंबर ऑफ वेव्स पाण खे मिलियल आहिनि 50। ठीक, नंबर ऑफ वेव्स पाण खे मिलियल आहिनि 50, टाइम पाण खे मिलियल आहे 10, फ्रीक्वेंसी पाण खे मालूम करणी आहे, टाइम पाण खे टाइम पीरियड मालूम करणो आहे ऐं बाक़ी वेवलेंथ मिली पई आहे 8 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम 15 अपॉन 10। नंबर वेव्स पाण खे 10 मिलियल आहिनि 50, टाइम पाण खे मिलियल आहे 10। ठीकु आहे, त पोइ जवाबु अची वियो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज़। टाइम पीरियड पाण खे मालूम करणो आहे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी तव्हांखे पाण अॻिए न्यूमेरिकल में कयो। ठीकु आहे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, तव्हां पंहिंजे कैलकुलेटर में करे ॾिसिजो, हीअ जवाबु ईंदो 0.25 सेकेंड। बाक़ी वेलोसिटी भी मालूम करनी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा एफ। ठीक, v इज इक्वल टू 0.08 इंटू 5, v इज इक्वल टू 0.4 मिली सेकेंड पंहिंजो जवाबु। ठीक है, हाणे पाण खे चौथे नंबर न्यूमेरिकल ते पाण ईंदासूं। ठीकु आहे, चौथो नंबर न्यूमेरिकल पाण खे चए थो a slinky has produced a longitudinal wave. The wave travels at the speed of 40 km per second and the frequency of the wave is 20 hertz. What is the minimum separation between the consecutive compressions? बाक़ी इन्हनि सभिनी जा जवाब मिलियल आहिनि, तव्हां हिन में ॾिसी सघो था। ठीकु आहे, हाणे पाण चौथे नंबर न्यूमेरिकल ॾांहुं वधूं था। ये हेठि चौथो नंबर न्यूमेरिकल थियो पियो आहे। v इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी पाण खे 20 हर्ट्ज़ मिलियल आहे। बाक़ी वेवलेंथ मालूम करणी आहे ऐं बाक़ी वेलोसिटी मालूम करणी आहे। वेवलेंथ मालूम करणी आहे, हुनजे करे फार्मूलो इहो लॻंदो वेलोसिटी वारो, v इज इक्वल टू लैम्डा एफ। हाणे पावर वधूं था। लैम्डा इज इक्वल टू वी, लैम्डा पाण वॾा खणी इहे अची विया हुन में वी अपॉन एफ। लैम्डा इज इक्वल टू 40 अपॉन 20। हिन पे पाण खोड़ो लॻायो, जंहिंजो लॻाए सघो था पाण खे जवाबु आयो वेवलेंथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर या लैम्डा इज इक्वल टू 0.2 मीटर। ओके, हाणे पाण न्यूमेरिकल पंजे न वधूं। पंजो न्यूमेरिकल है सपोज ए स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन ए स्लंकी। Students hand make
One complete fourth and back oscillation in 0.40 second. The wavelength in the ceiling key is 0.60 meter for this wave. Determine बाकी पीरियड मालूम करना, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, वेव स्पीड मालूम करनी है, सब आऊँ बाकी के दिखाने दो पालना न्यूमेरिकल डेटा नहीं भाई नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू 100 टाइम बाकी 0.40 सेकंड मिलेला लेमडा इज इक्वल टू 0.60 मीटर मिलेला टाइम इज इक्वल टू मगर लेना है फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन मार्क वेलोसिटी मांगी लेनी है पापड़ी फ्रीक्वेंसी लाऊंगा एज वी नो दैट एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम नंबर ऑफ वेव्स गणी है ना 100 टाइम गणवा 0.40 सेकंड ठीक है हाणे पाण जी वंड थींदी कंदासूं इन जो जवाब आयो एफ इज इक्वल टू 2.hz जवाब अची वियो हाणे पाण टाइम मालूम करणो आहे टी इज इक्वल टू 1/f फ्रीक्वेंसी पाण मिली वई 2.5 जे करे हीउ जवाब आयो कैलकुलेट करी वठिजो टी इज इक्वल टू 0.4 सेकंड वी इज इक्वल टू बाकी माना वेलोसिटी मालूम करनी है वी इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा वी इज इक्वल टू 2.5 बाकी फ्रीक्वेंसी मिली वही इंटू 0.60 बाकी वेव लेंथ मिले वी इज इक्वल टू 1.5 मिली सेकंड ठीक है पाण वेलोसिटी मालूम करी टाइम पीरियड मालूम करी फ्रीक्वेंसी मालूम करी हम बाकी जेकी मिलल वा टई मालूम करी दिया हाणे पाण न्यूमेरिकल नंबर अगेन न्यूमेरिकल ॾा वधूं था नंबर 6 if 80 compressions has throw a point spring in 20 second calculate the frequency and the period if two consecutive compression are 8 centimeter apart calculate the wave speed ठीक है नंबर ऑफ कंप्रेशन इज इक्वल टू 80 टाइम बाकी मिलेगा 20 सेकंड फ्रीक्वेंसी बाकी मालूम करनी है टाइम पीरियड टाइम मालूम करना है बाकी वेव लेंथ मालूम मिलेला है 8 सेंटीमीटर वेलोसिटी बाकी मालूम करनी है ठीक है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल नंबर ऑफ वेव्स अपन टाइम फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स यानी कि नंबर ऑफ कंप्रेशंस नंबर ऑफ रेयरफिकेशंस नंबर ऑफ वेव्स बाकी मिलेला है 80 अपन में वी टाइम पीरियड बाकी मिलेला है जवाब अची वियो 4 हर्ट्ज माना सही भी है टाइम पीरियड बाकी मालूम कर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f 1 फ्रीक्वेंसी पाई मालूम करी 4 हर्ट्ज अपन ॾेई छॾियो जो पूरो जवाब आहे 0.25 सेकंड वी इज इक्वल टू बाकी वेलोसिटी मालूम करनी है या स्पीड वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पाखे मिलियल आहे 8 सेंटीमीटर 0.08 इंटू फ्रीक्वेंसी पाण मालूम करी 4 हिन जो जवाब अची वियो 0.32 मीटर पर सेकंड ठीक है पाण छहों न्यूमेरिकल थी वियो हाणे पाण सते न वधूं था सतों न्यूमेरिकल आहे waves on a swimming pool propagate at 0.90 millisecond if you splash the water at one end of the pool observe the wave go to the opposite end if reflect and return in 30.0 second how far away at other end of pool ठीक है बाकी ये मालूम करना होता है न्यूमेरिकल में बाकी गिवन डेटा वेलोसिटी मिले है बांगे टाइम पीरियड बांगे मिले है ये लेंथ मालूम करनी लेंथ इज वेवलेंथ क्वेश्चन मार्क फ्रीक्वेंसी मालूम करनी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t 1 टाइम है ठीक है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम बांगे मिले है 30.0 एंड एफ इज इक्वल टू 0.033 हर्ट्ज वी इज इक्वल टू एफ लेमडा बाकी मना मालूम करना है L is equal to F lambda L is equal to V upon F L is equal to बाकी लेंथ मिले है 0.90 ठीक है अपॉन फ्रीक्वेंसी बाकी मिले है 0.033 तो L is equal to 27.27 मीटर न्यूमेरिकल 8वां है सिंपल oscillating pendulum has a length of 80 centimeter 80.0
कैलकुलेट्स पीरियड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 1 g इजिकल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एल इजिकल टू 80.06 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बाकी मीटर में बदलना है, 80/100 इजिकल टू एल इजिकल टू 0.8 मीटर, बाकी जी की वैल्यू मिले 9.8 मीटर पर सेकंड, लेमडा 3.142, बाकी टाइम पीरियड मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी में टाइम पीरियड इजिकल टू 2πL/g, पाई जी मेरी बागे 3.142 मिले पा रखीसूँ, 2 बार दिनों पे माना फार्मूला मुताबिक पा रखियो सी, पा लेमडा जी वैल्यू रखियो सी, तो पाई जी वैल्यू रखियो सी सॉरी इंटू 0.8 पा एल जी वैल्यू रखियो सी, वो मते पा लथी है उन मीटर में, अपान जी वैल्यू पूछे हुए पा 9.8 रखियो, ठीक है। टी इजिकल टू ॿ इंसान जैसे पा वारी पाए जी वैल्यू के ज़रब कंदासूं तो जवाब इंदो 0.284, ऐं पाखे इन ॿिन्ही के ज़रब कंदासूं वंड कंदासूं यानी तो जवाब इंदो 0.0816, पाण खे अञा अंडरवर्ड मां कोन्हे कढियो, हाणे पाण इन खे अंडरवर्ड मां कढियो आहे 0.285, त पोइ हिन जो जवाबु आयो आहे टी इजिकल टू 1/, में खे ज़रब कयो आहे, कुझु कोन्हे माना ज़रब आहे, टी इजिकल टू 1.794 मीटर, बाक़ी फ्रीक्वेंसी मिल फ्रीक्वेंसी इजिकल टू 1/t, पहिरियों न्यूमेरिकल करी आया आहियूं, पंहिंजो इहा आख़िरी न्यूमेरिकल आहे, एफ इजिकल टू 1/794, बाक़ी मिली पई टी, तो एफ इजिकल टू 0.558 हर्ट्ज़ अची वियो, जवाब पंहिंजो सही आयो आहे। जो भी जेको भी वीडियो मुंहिंजा ॾिसे थो माना सब्सक्राइब कंदो करे जा अच्छा माना हुनखे को बि वीडियो ठाहियां या को बि माना फिज़िक्स जो कंहिंजो वीडियो ठाहियां हुन वटि पहुची वञे, ठीकु। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबर।